Hello, welcome students. In previous video, we have discussed what is operating system, its features, its functionalities, and the type of operating system. Now today, we are going to start with commonly used operating system. The first operating system that comes under this category is Windows operating system. Windows operating system is the world's most popular and widely used operating system available these days. We are having versions of Windows like Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, etc. In modern personal computer, we prefer using Windows operating system because of it is simple and effective. Windows is an operating system that acts as interface between the user and the computer. It has been developed by Microsoft and was introduced on November 20, 1985. That means on November 20, 1985, the first version of Microsoft Windows was introduced. Windows uses a graphical user interface, that is GUI, which we have already discussed, an operating system in which we can use our pointing devices to click on icons to execute command. The final version of Windows operating system was Windows 95. Since then, many new and advanced versions of the Windows has been developed, such as Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10, which is the latest version of Windows released on 29th of July 2015. Now, next operating system is Unix operating system. Unix is very powerful operating system with a wide spectrum of powerful features. It was developed in 1969 by a group of AT&T employees at Bell Labs, and since then it is under constant development. तो इसको सबसे पहले 1969 में AT&T बेल लैबोरेटरी के एम्प्लॉयज़ ने बनाया था और तब से ये कांस्टेंट डेवलपमेंट में है, मतलब इसमें हमेशा नए नए डेवलपमेंट, नए नए सुधार होते जाते हैं. हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रेगुलेटेड एक्सेस टू डेटा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. हाई लेवल की सिक्योरिटी और डेटा एक्सेस ये सबसे मेन फीचर हैं आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के. आप इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड में सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में गिना जाता है. आज तक ये जो सिस्टम है इसे हैक नहीं किया जा सका है. मोस्ट ऑफ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ स्टेबल मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं. ये मल्टी यूज़र, दैट मीन्स मल्टीपल यूज़र एक समय इसको यूज़ कर सकते हैं, और मल्टी टास्किंग, दैट मीन्स मल्टीपल टास्क कैन रन एट द सेम टाइम मोमेंट. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस similar to Microsoft Windows, which offers an easy to use environment. Unix operating system was initially developed in assembly language. जो सबसे पहले इसको बनाया गया था तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके इसको डिज़ाइन किया गया था. असेंबली लैंग्वेज हम प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं. इन द ईयर 1973 द होल प्रोग्राम वॉज recoded in C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 1973 में इसको पुनः से दोबारा से C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया. And the main objective behind this shift was to make Unix move to many different computers. Today, Unix is available on devices such as PCs, workstation, mainframe, and even supercomputers.
तो 1973 में इसको सी लैंग्वेज में इसलिए लिखा गया कि इसको अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, उन पे यूज़ किया जा सके। और इसी का ये परिणाम है कि आज के डेट में यूनिक्स को हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, वर्क स्टेशंस में यूज़ कर सकते हैं, मेन फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं, और इवन हम इनको सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक ये कह सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट है लाइनेक्स। लिनक्स इज़ हाई परफॉर्मेंस येट कम्प्लीटली फ्री यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लाइनेक्स एक हाई परफॉर्मेंस और पूरी तरीके से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वर्किंग इसकी लगभग यूनिक्स से मिलती जुलती है। अब यूनिक्स और लाइनेक्स में सिमिलरिटी बहुत है, बस डिफरेंस ये है कि यूनिक्स बहुत ही हाईली पेड होता है, मतलब अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं यू हैव टू पे अ लॉट। बट if you want to use Linux operating system, you do not need to pay anything. The most of its version like Fedora Core, Ubuntu, etc. consist of a kernel accompanied by hundreds of free utilities and application program in a coordinated package. जैसे अगर आप फेडोरा या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग टैल में यूज़ करते हैं अपने स्कूल में एक्स्ट्रा मार्क के, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एज अ पैकेज उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होगा, प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर होगा, एक्सेल जैसे अगर वर्क करना है स्प्रेडशीट तो उसके लिए कैल होगा, अगर आपको ग्राफिक्स एडिटिंग करनी है तो उसके सॉफ्टवेयर, तो वो सारी चीज़ें एज अ पैकेज एक साथ आती हैं। द कर्नल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज, दैट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड कंपोनेंट। तो जैसे कर्नल हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, वैसे यहाँ पे भी कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये कम्युनिकेशन बैठाए आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। अनलाइक द विंडोज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट, लाइनेक्स इज डेवलप्ड एंड मेंटेन कोलाबरेटिवली, which means that is no single organization is fully responsible for its development and support. तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये केवल एक कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, और वही कंपनी इसके अपडेट्स देती है और उसमें मॉडिफिकेशन करती है। वेयर एज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके से कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और ये जो चीज़ है ये इसको और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाती है। वेरियस कंपनीज वर्क टुगेदर ऑन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड शेयर अ कॉमन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म विथ ईच अदर। कंपनीज सच हैज़ रेड हैट, SUSE and Mandriva are now providing package distribution of Linux meant for mass utilization। तो ये जो कंपनियां हैं, रेड हैट है और SUSE है, मैंड्रीवा है, ये सारी कंपनियां आज के डेट में सबसे ज़्यादा लाइनेक्स पे काम कर रही हैं, और ये नए नए अपडेट्स देती हैं जिनको कोई भी जनरल पीपल यूज़ कर सके। Linux is slowly growing as a tough competitor against Windows. Linux is very stable as compared to Windows. In Linux, every single application is independent of each other and is free of cost. हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर जो लाइनेक्स पे काम करता है वो फ्री है, सबसे बड़ी चीज़ फ्री है और इंडिपेंडेंट है, मतलब उन सॉफ्टवेयर के बीच में कोई भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, जिससे उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको रन कराने में, उनको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। हार्डली 1% ऑफ द एप्लीकेशन विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज कॉस्ट समथिंग। लाइनेक्स इज़ वेरी सेफ एज कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें केवल 1% ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो किसी बिजनेस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जो कुछ कॉस्ट जिनका आपको पे करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इसके फ्री हैं, और ये मोर सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। यहाँ तक कि ये कह लो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बग फ्री, एरर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको
बहुत टफ होता है ब्रेक करना इसकी सिक्योरिटी। देन आफ्टर नेक्स्ट इज सोलरीज। सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम को सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। सन माइक्रो सिस्टम वो कंपनी है जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। तो सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम was originally developed by Sun Microsystem in 1992. Presently, it's known as Oracle Solaris since Oracle Corporation overtook Sun in January 2010. It is a combination of both open source and closed source concept. तो जब Oracle ने इसको 2010 में जनवरी 2010 में ख़रीद लिया सन माइक्रो सिस्टम को, तो उसके बाद से सोलरीज को हम सन सोलरीज की जगह पे हम ओरेकल सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलने लगे। और ओरेकल सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा एग्जांपल है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का। ओपन सोर्स क्या होता है कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और क्लोज सोर्स में उसका सोर्स कोड हिडन होता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट है बॉस, BOSS। बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, नाम से ही क्लियर है, ये इंडिया भारत का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोस्टली ये गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो बॉस इज़ GNU लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय CDAC चेन्नई। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया है GNU, इसका फुल फॉर्म होता है G फॉर GNU, N फॉर नॉट, U फॉर यूनिक्स। इसको बोलते हैं रिकर्सिव एक्रोनम। रिकर्सिव एक्रोनम वो फुल नेम होता है जिसमें जो शॉर्ट नेम है वो उस फुल नेम का एक पार्ट होता है। जैसे GNU में G फॉर GNU हो गया, तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव एक्रोनम। तो GNU स्टैंड्स फॉर GNU नॉट यूनिक्स and Linux distribution developed by CDAC Chennai in order to benefit the use of free and open source software throughout India. BOSS GNU Linux is key deliverable by of NRCOFOSS, जिसको बोलते हैं National Resource Center for Free Open Source Software. It has enhanced desktop environment integrating Indian language support and other packages that are relevant for use in Indian government domain. तो इंडियन लैंग्वेज जो भी देवनागरी है, गुरमुखी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस को बहुत ही ईजिली सपोर्ट करता है, जिसके द्वारा इसे इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर सके। BOSS makes it easier for Microsoft Windows user to migrate to GNU and Linux platform by providing outstanding features like bulk document convert, presentation tools and features like plug and play. तो सारे फीचर्स जो आप मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहते हैं वो सारी चीज़ें बॉस में अवेलेबल है। तो जो यूज़र हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र हैं विंडोज़ के, वो भी इस पर मूव कर सकते हैं। बॉस इज़ कस्टमाइज्ड फॉर the ease of use in educational domain like school and colleges, and variants are also available to suit enterprise users, जिसको बोलते हैं सर्वर एडिशन। तो स्कूल कॉलेजेस के लिए भी ये अवेलेबल होगा और इंटरप्राइज एडिशन इसका, सर्वर एडिशन इसका बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अवेलेबल होगा। लेकिन अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवेलेबल है, आगे आने वाले समय में आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। इसको स्पेशल टाइप हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिकॉज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हैंडहेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में यूज़ करने के लिए स्पेशली बनाए गए होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज मोबाइल OS, इट इज़ particularly designed to operate smartphones, PDAs, tablets and other mobile devices. Mobile operating system is a software which provide platform on which other programs or application can run on mobile devices. तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन में, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स में, टैबलेट्स में और अदर मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं,
ये सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिस पे आपके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बाकी सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सके। मतलब अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तभी आप कोई भी ऐप या गेम या जो भी है वो आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। With the advent of mobile operating system, the technology savvy people are no more confined to a particular geographical location. It has empowered the user to check their mails, files, and to work on data from anywhere and anytime. तो पहले क्या होता था, जब हम मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते थे और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते भी थे तो वो बेसिक फ़ोन्स हुआ करते थे जो पहले स्टार्टिंग में आए थे, जिसमें हम ईमेल फैसिलिटी, चैटिंग फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो अगर हमें कोई मेल चेक करना है तो हमें पर्सनली किसी कंप्यूटर को ऑन करके इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर वहाँ पे वो काम करना होता था। और उसके लिए या तो अगर हमारे घर पे कंप्यूटर है तो हमें अपने घर जाना होता था, या हमें साइबर कैफ़े विज़िट करना होता था। तो हमें जियोग्राफिकली किसी एरिया में जाके बैठ के और फिर इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते थे। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ डेज वी कैन एक्सेस मेल्स, वी कैन चैट, वी कैन शेयर आर इंफॉर्मेशन विथ एनी वन वेरी ईजली एट एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। हम कहीं पे भी हैं, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमें कंप्यूटर और इंटरनेट होने पे हम कर पाते। There are various kind of mobile operating system used in smartphones such as BlackBerry का RIM operating system, Android BlackBerry operating system provided by RIM, and Android provided by Google, iOS by Apple, Symbian by Nokia and Windows Mobile by Microsoft कंपनी। तो पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन INC। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में, क्योंकि बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो या तो बहुत ही महंगे फ़ोन में आते हैं या उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें iOS की या ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इनके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड डिवाइसेस के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल आईफोन की, तो ये 50,000 प्लस कॉस्ट करता है, और अगर हम उसका लेटेस्ट और अपडेटेड वर्ज़न लें तो ये लाखों में आता है। वेयर एज़ अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो एक बढ़िया टच स्क्रीन एंड्रॉयड डिवाइस आपको 20 से 22,000 रुपये में भी मिल जाएगा, जिसमें आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप आईफोन में या बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन्स में कर सकते थे, जिसमें कैमरा भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, मेमोरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो ये बेनिफिट होता है हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने का। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले बनाया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी है एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, उसने बाद में इसको गूगल ने टेक ओवर कर लिया। तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स बेस्ड है। इसका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट है वो लाइनेक्स पे ही आधारित है। इन अक्टूबर 2003 इट वाज एंड लेटर ऑन परचेज्ड बाय गूगल इनकॉर्पोरेशन इन 2005। तो 2003 में इसको बनाया था एंड्रॉयड कंपनी ने, एंड गूगल ने इसको 2005 में परचेज कर लिया। द ग्रीन रोबोट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो सिंबल है ग्रीन रोबोट सिंबल, तो द ग्रीन रोबोट is the logo for Android operating system. Android OS turns your phone into a powerful web browser, game console and personal assistant all in one. तो Android operating system जो हम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो फ़ोन है ये एक बहुत ही पावरफुल वेब ब्राउज़र, गेम कंसोल और पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। वेब ब्राउज़र मतलब
इस फ़ोन में हम कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं जो हम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर पाते। हम इस पे बहुत ही हाई रिजोल्यूशन की गेम्स भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ जो पर्सनल असिस्टेंट का काम है वो तो हमारा मोबाइल फ़ोन करेगा ही। इट वॉज प्राइमरली डिज़ाइंड फॉर टच स्क्रीन पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। इसको बनाया गया था टच स्क्रीन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। विथ एंड्रॉयड you can use all the Google apps and many other application for free which empowers the phone। आपको ये पता ही होगा गूगल प्ले स्टोर से हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं जिनको हम डाउनलोड करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड पावर्स some of the best handset and tablet manufacturer in the world like Samsung, HTC, Motorola, Sony, Asus and many more। तो ये जो सब वर्ल्ड की लीडिंग मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे सैमसंग है, HTC, मोटोरोला, सोनी, आसूस, ये सारे के सारे एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस बनाती हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो सिम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स में आता था जब नोकिया कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज़ कर लिया और फिर विंडोज़ मोबाइल्स आने लगे। तो सिम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में एब्सोलेट हो चुका है, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिम्बैन इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर स्मार्टफोन्स। सिम्बैन वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई सिम्बैन लिमिटेड एंड इज़ करेंटली मेंटेन्ड बाई एसेंचर। तो एसेंचर कंपनी के द्वारा करेंटली ये मैनेज किया जाता है और इसको बनाया था सिम्बैन लिमिटेड, एक कंपनी है उसने, और उसी के नाम पे इसका नाम सिम्बैन ओएस पड़ा। तो सिम्बैन वॉज प्राइमरली यूज्ड बाय नोकिया एंड वॉज आल्सो यूज्ड बाय मेजर मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स लाइक सैमसंग, मोटोरोला एंड सोनी इरेक्सन। एंड्रॉयड overtook it in the end of 2010. Until then, it was the most powerful operating system for smartphones। तो 2010 में ये एक तरीके से बंद हो गया और उससे पहले तक 2010 तक ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। बाद में जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए लाइक एंड्रॉयड आया तो उसने इसके मार्केट को पूरी तरीके से बंद कर दिया क्योंकि एंड्रॉयड इज़ फार बेटर दैन सिम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज़ iOS। iOS is a mobile operating system developed by Apple। It is the world's most advanced mobile operating system। ये एप्पल कंपनी ने इसको बनाया था और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। It was originally released in 2007 and is used to run the iPhone, iPad, iPod Touch devices। तो 2007 में इसको सबसे पहले बनाया गया था और ये यूज़ किया जाता है आईफोन में, iPad में और iPod Touch में। फॉर्मली इट वाज नोन एज iPhone OS और इसीलिए इसका नाम पड़ा iOS। I फॉर iPhone, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। Apple makes both the hardware and the operating system for its devices which run on iOS। Everything is designed to work together, which makes it safe and unique। iOS 11.4.1 is its latest version, which was released on 9th July 2018। तो एप्पल जो OS है, ये एप्पल का iOS, ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हैक करना बहुत ही टफ होता है या कह लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और ये केवल और केवल आईफोन्स पे ही रन करते हैं, आईपॉड और एप्पल के ही डिवाइसेस पे रन करते हैं। इसको हम सिंपल मोबाइल फ़ोन पे अगर हम इंस्टॉल करना चाहें वी कैन नॉट, और अगर हम एंड्रॉयड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल के डिवाइस पे इंस्टॉल करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते। तो iOS के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये ईज़िली कनेक्टेबल नहीं होता है
अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेस के साथ। और एंड्रॉयड फ़ोन्स अगर हम लोग के पास हैं तो अगर 2 एंड्रॉयड फ़ोन हैं तो उनको हम ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 आईफोन ओएस हैं उनको भी हम ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटर या क्रॉस कंपैटिबिलिटी बहुत ही कम होती है इन दोनों में। नाउ iOS offers multitasking feature that allows the application on iPhone to perform tasks in background, which in turn preserve battery life and moreover increase performance. With iOS, searching and geographical location, that means mapping, has become very convenient. तो iOS मल्टीटास्किंग फीचर प्रोवाइड करता है। आजकल एंड्रॉयड डिवाइस भी मल्टीटास्किंग फीचर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम कुछ टास्क को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारी बैटरी सेव होती है और बैटरी लाइफ बढ़ती है और अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। और इसके साथ सर्चिंग और जियोग्राफिकल लोकेशंस फाइंड करना ये ज़्यादा इजी हो जाता है। Unlike other mobile OS such as Android and Windows, Apple does not authorize iOS for installation on any non-Apple hardware। जो मैं पहले भी बता रखा हूँ कि एंड्रॉयड को हम बाकी किसी भी एंड्रॉयड कंपेटेबल डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ मोबाइल है उसको भी कहीं पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एप्पल कंपनी के हार्डवेयर पे, मतलब आईफोन्स पे, आईपॉड पे हम बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, और ऐसे ही iOS को हम बाकी किसी और कंपनी के मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। देयरफॉर iOS डिवाइसेस आर क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स हार्डवेयर। तो iOS को हम एक्सक्लूसिवली उसी हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं जो एप्पल कंपनी ने बनाया है। Apple designed the iOS devices to maintain a high level of security without compromising the user's experience. iOS prevents the chance of piracy by not allowing illegal download into iOS devices, be it a movie, music, game, etc. तो ये इसका एक तरीके से कह लो बेनिफिट भी है और आप लोगों के लिए ड्रॉबैक भी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ऐप्स या मूवीज़ या जो भी चीज़ें पायरेटेड चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ड्यू टू द एक्सेप्शनलिटी ऑफ एप्स, गेम्स एंड फीचर, iOS devices cost more than any other mobile OS gadgets available in the market। तो इसीलिए ये सबसे महंगा मोबाइल फ़ोन्स इसी कंपनी के आते हैं। देन आफ्टर विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लास्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ओएस में। तो इट इज़ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड ऑन विंडोज़ सीई कर्नल। तो विंडोज़ सीई एक वर्ज़न है, उसके कर्नल के बेस पे, ये कर्नल पे ही ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, विंडोज़ मोबाइल जिसे बोलते हैं। It is designed to look and operate similar to desktop versions of Microsoft Windows. It has given a whole new dimension to emailing and documentation. So it looks similar to the Windows operating system that we use in our laptop or desktop. और इससे जो मेलिंग है, ईमेलिंग है और डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। Some of the Windows Mobile OS are Nokia Lumia 1920, Samsung ATIVS, and Windows Phone 8C by HTC. Windows Mobile OS is mainly classified into three main versions for various hardware devices. Smartphones with touchscreen are supported with Windows Mobile Professional version. Mobile phone without touch screen run Windows Mobile Standard, and the latest version of Windows Mobile OS is Windows 10 Mobile, which run on mobile phones and tablets. तो जो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन थे पुराने, उनमें विंडोज़ मोबाइल प्रोफेशनल वर्जन चलता था। जो टच स्क्रीन मोबाइल नहीं थे उनमें विंडोज़ मोबाइल स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ किया जाता था। और आज की डेट में जो हम विंडोज़ मोबाइल देखते हैं उसमें विंडोज़ 10 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, जो आज की डेट में हम विंडोज़ टैबलेट्स
और विंडोज़ मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं। Microsoft will stop providing support and update for Windows 10 Mobile by the end of 2019। तो 2019 के इन में इसके लिए सपोर्ट आना बंद हो गया है और आगे चल के ये भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। एंड केवल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में रह जाएंगे, एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी। नाउ these are the exercise questions. Please have a look on it and complete the unsolved theory questions which is given on your book, page number 81. In case of any doubt, you can please contact me. Thank you.